یہ وہ زمانہ تھا جب کعبہ بتوں سے بھرا ہوا تھا، ہر طرف شرک کا اندھیرا تھا۔ لوگ بتوں سے کہتے تھے، اے دنیا کے خدا، ہمارے نذرانے قبول کرو، آپ ہی ہمارے خدا ہیں۔ مکہ کے سردار ابو جہل اور ابو لہب اور قریش کے بڑے لوگ اپنی ضد اور تکبر میں ڈوبے ہوئے تھے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جب توحید کی بات کی تو یہ سردار چینک اٹھے، کہنے لگے، محمد کہتا ہے کہ وہ اللہ کا رسول ہے، ہم اس کی کوئی بات نہیں مانتے، وہ ہمارے بتوں کی توہین کرتا ہے، کہتا ہے یہ سب بیکار ہے۔ انسان ضد میں تھا، سردار انا میں، اور مکے کا معاشرہ گمراہی میں ڈوبا ہوا تھا۔ لیکن ان سب کے درمیان ایک اور مخلوق تھی جو نہ قریش کی ضد میں تھی نہ سرداروں کی انا میں، وہ صرف سچ کی تلاش میں تھی۔ وہ تھی جنات کی جماعت۔ جب قرآن کی آواز گونجی تو وہیں سے ان کی تلاش ختم ہوئی اور ہدایت کا دروازہ کھل گیا۔ اللہ، یہ اس وقت کی بات ہے جب زمین پر اندھیرا اپنے عروج پر تھا۔ اندھیرا صرف رات کا نہیں تھا، اندھیرا لوگوں کے دلوں میں تھا۔ کعبہ کے کونے میں سجدے تو تھے مگر اللہ کے لیے نہیں، چہرے جھکے ہوئے تھے مگر دل بتوں کی زنجیر میں بندھے ہوئے تھے۔ وہ اپنے ہاتھوں سے بت بناتے اور پھر انہی سے فریاد کرتے، یہ بت ہی ہمیں رزق دیتے ہیں، یہ ہماری ہر ضرورت کو پورا کرتے ہیں، ہمیں بیٹے بھی یہی دیتے ہیں، یہی ہمارے خدا ہیں۔ لوگ بھوک سے بلک رہے تھے، ظلم حد سے بڑھ چکا تھا۔ عورتیں اپنے بچوں کو بھوک سے روتا دیکھ کر آنکھیں بند کر لیتی اور مرد اپنے بے اختیار خداؤں سے چیخ چیخ کر کہتے، رحم کرو، اے خدا منت، ہم پر رحم کرو۔ وقت نیچے گزر رہا تھا مگر آسمان خاموش تھا۔ انسان نے اللہ کو چھوڑ دیا تھا، وہ مٹی سے تراشے ہوئے پتھروں کو اپنا خدا سمجھ بیٹھا تھا۔ کسی کے سامنے سونے کی زنجیر رکھی جاتی، کسی کے سامنے آٹے کا تھیلا، کسی کے سامنے دودھ کی مشک، اور کوئی بت کے چرانوں میں سوچے سمجھے بغیر اپنی بیٹی قربان کر دیتا، محض امید پر کہ شاید یہ خوش ہو جائے۔ اے دنیا کے خدا، ہمارے نذرانے قبول کرو، آپ ہی ہمارے خدا ہیں۔ کیا انسان اتنی بستی تک گر سکتا ہے؟ دنیا کے سب سے مقدس گھر کے آس پاس سب سے گندی عبادتیں ہونے لگیں، افراد کی تذلیل، غریبوں کی خرید و فروخت، اور سب سے بڑا شرک، انسان نے انسان کو اپنا خدا بنا لیا تھا۔ جب ظلم حد سے بڑھ جاتا تو اللہ کا نظام حرکت میں آتا ہے۔ ایک دن اسی سرزمین مکہ میں روشنی اتاری، آسمانوں سے ایک آواز لگی، اقرا، زمین لرز اٹھی، فرشتے حیران اور آسمان پر روشنی کے پردے کھل گئے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت عطا ہوئی، روشنی کا پہلا قطرہ تاریکی میں گر چکا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آواز بلند کی، ایک ایسی آواز جس نے پتھر دل قریش کو دہلا دیا، لا الہ الا اللہ کہو، نجات پالو۔ مگر لوگ چیخ اٹھے، ہمارے بتوں کو برا کہا، ہماری روایتوں کو چیلنج کیا، ہمارا نظام تلوار سے بھی مضبوط ہے۔ ان کی آنکھوں میں سوال نہیں تھا، صرف تکبر تھا۔ یہ کیسا نوجوان ہے جو ہمارے خداؤں کے سامنے سوال اٹھا رہا ہے؟ کیا تو نہیں جانتا یہ ہمارے محافظ ہیں؟ ایک رات مکہ کی تنگ گلیوں سے نکل کر اللہ کے رسول اور چند صحابہ مکے سے باہر سفر پر نکلے۔ مقصد تھا قبیلہ آسمان تک پہنچنا۔ رات ٹھنڈی تھی، ہوا میں عجیب سی خاموشی تھی، دنیا سو رہی تھی لیکن تقدیر بیدار ہو چکی تھی۔ ایک صحابی نے کہا، یا رسول اللہ، کیا آپ دیکھ رہے ہیں چاند آج کچھ زیادہ روشن ہے؟ چاند تو خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے سے روشنی لے رہا ہے۔ چاندنی ریت پر پھیل رہی تھی اور ریت پر چلنے والوں کے قدم تاریخ لکھ رہے تھے۔ انہیں معلوم نہ تھا کہ اس رات انہیں کون سن رہا ہے، یہ ہزار جن
उसी रात रेत के एक तवील सहरा में वो मखलूक भी भटक रही थी जिसे हम देख नहीं सकते। जिन्नात, हम समझते हैं कि सिर्फ इंसान ही भटकते हैं, लेकिन उस रात जिन्नात भी सच की तलाश में थे। वो भटकते हुए थे और वो तलाश में थे कि जमीन पर ऐसा क्या गैर मामूली वाकया हो रहा है कि जिसकी वजह से आसमानों के दरवाजे बंद कर दिए गए हैं। आसमानों पर पहरे सख्त थे। जो जिन फरिश्तों की गुफ्तगू चुराने जाता, आग के शोलों से जलकर फेंक दिया जाता। हम आसमान से खबर सुनते थे, अब क्यों नहीं सुन पा रहे? क्या जमीन पर कोई नई चीज नाजिल हो रही है? पहले उनके लिए आसमान खुला था। वो ऊपर जाते, फरिश्तों की बातें सुनते और जमीन पर वापस आकर जादूगरों, कहानों और नजूमियों को खबरें देते। मगर अब उनके हर रास्ते पर आग के मुहाफिज खड़े थे। आसमान पर एक नया कानून नाफिज हो चुका था। वही का आगाज हो चुका था और जब वही नाजिल होना शुरू होती तो आसमान के दरवाजे बंद हो जाते हैं और आसमानी राजों की हिफाजत बढ़ जाती है। जिन्नात, जुम्मा ने एक कहा, जमीन पर जरूर कोई अजीम वाकया हो रहा है, ऐसा वाकया जिससे हमारी दुनिया बदल दी। दूसरे ने कहा, हमें जानना होगा, हमें तलाश करनी होगी कि वो कौन है जिसकी वजह से आसमानों के दरवाजे बंद हो गए। तीसरे ने कहा, चलो बिखर जाओ, जमीन के हर कोने में चले जाओ। जिन्नात का काफिला जमीन में फैल गया। वो इंसान को नजर नहीं आते थे, लेकिन इंसानों के करीब थे, देख रहे थे, सुनते रहे, जैसे कोई गैर महसूस सांसों में छुपा हो। रात गुजरती गई, सफर जारी रहा और फजर से कुछ पहले अल्लाह ने वो लम्हा लिख दिया जिसने जिन्नात और इंसान दोनों की तारीख बदलनी थी। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कयाम किया। रेत नरम थी, हवा की थी। सहाबा सिफ में खड़े हो गए। रात और दिन के बीच का लम्हा था, खामोशी का वो लम्हा जहां दुआ सांसों से भी ज्यादा आहिस्ता निकलती है। नबी अस्सलाम की आवाज शुरू की। कुरान की आवाज रेत पर नहीं, रूहों पर पड़ती रही और जिन्नात उस आवाज की तरफ खींचे चले आए, बेअख्तियार, बिला अख्तियार, जैसे प्यासा पानी की तरफ दौड़ता है। ये आवाज कोई आम आवाज नहीं थी, ये अल्फाज कोई आम अल्फाज नहीं थे। ये कलाम कायनात के खालिक का कलाम था। जिन्नात लरस गए, उनकी दुनिया रुक गई, उनकी सांसें थम गई। ये कौन सा कलाम है? ये दिल को क्यों काट रहा है? ये कलाम किसी इंसान का नहीं हो सकता, जरूर ये आसमान से उतारा गया कलाम है। जिन्नात की तारीख में पहली मर्तबा वो बेबस, वो समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर वो कौन सी ताकत है जो उन्हें रोक रही है। वो कौन सा राज है जो आसमान महफूज कर रहा है, और सबसे बढ़कर वो कौन है जिसकी आमद से पहले आसमान की छत पर इतनी सख्त पहरादारी लगा दी गई है। आखिर कौन सा नूर जमीन पर उतरने वाला है जिससे शैतान और जिन्नात की दुनिया लरस गई है? ये कैसी आवाज है? ये आसमान जैसी क्यों लगती है? वो करीब आए, नीचे देखा, एक इंसान, एक बाग वजूद मिट्टी पर खड़ा, सामने सजदा राज था और उसकी जुबान उस कलाम उतार रही थी। वो कलाम जो पहली बार जमीन पर पढ़ा जा रहा था, जो आसमानों से उतरा था और जिसने जिन्नात के दिलों को लरसा दिया था। ये वो कलाम नहीं था जो इंसान बोलते हैं, ये कलाम आसमानों का लगता है। उसी रात जिन्नात को जवाब मिल गया कि आसमान क्यों बंद था, आग का पहाड़ क्यों लगाया गया था, सितारे क्यों जलने लगे थे, क्योंकि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही उतर चुकी थी। जिन्नात के कदम जमे हुए रेत पर जैसे पत्थर बन गए थे। उनके वजूद से साकत सांसें जैसे किसी ने छीन ली हों। सहरा के गहरे अंधेरे में वो नूरानी अल्फाज बह रहे थे जो पत्थरों को नरम कर देते हैं, दिलों की जंजीरों को तोड़ देते हैं और जिन्नात की तारीख हमेशा के लिए बदल देने वाले थे। वो जिन जो हजारों साल तक आसमान से राज चुरा कर लाते, पहली बार जमीन पर एक ऐसी चीज सुन रहे थे जो राजसी नहीं, हकीकत थी, नूर थी, रोशनी थी, पाकीज़गी थी और वो सब कुछ जो उन्हें कभी महसूस ही नहीं किया था। ये अल्फाज हमारे अंदर कुछ तोड़ रहे हैं, जैसे सीने में ताला खुल रहा हो।
कुरान की एक एक आयत जिन्नात के दिलों में दाखिल होती गई। वो पीछे हटना चाहते थे मगर उनके कदम जैसे जमीन ने पकड़ लिए हों। हमने ऐसा कलाम कभी नहीं सुना, न आसमान पर और न जमीन पर। ये आवाज नहीं, ये रोशनी है। आखिरकार वो लम्हा आया जब कुरान की तिलावत खत्म हुई और खामोशी ने पूरी वादी को ढांप लिया। खामोशी लेकिन ऐसी जिसमें सुकून था और हलचल भी, नूर था और लर्जिश भी। जिन्नात अब समझ चुके थे कि उनके सवाल का जवाब मिल चुका है। आसमान इसलिए बंद था क्योंकि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जमीन पर आ चुके थे। चलो जल्दी लौट चलो, हमें अपनी कौम को बताना है कि जमीन पर क्या उतर चुका है। वो फौरन अपनी पूरी कौम की तरफ रवाना हुए। रेत पर तेज रफ्तार दौड़, हवाओं की सरसराहट और कदम की गर्द के गोले, उनके दिलों में वही जुमला धड़क रहा था, हमें एक अजीब कुरान सुना है, हमने एक अजीब कुरान सुना है। तुम लोग आसमान के दरवाजे बंद होने का सबब जानना चाहते थे, हमको पता चल गया। अरब के कुरैश कबीले में रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आ चुके हैं। उनका नाम मोहम्मद है। वो सच्चे रसूल हैं, वो जिन जो कभी कब्र की पहाड़ियों पर खड़े थे, आज कुरान के सामने झुक चुके थे। जिनकी जिंदगी का मरकज सिर्फ ताकत थी, आज उनके वजूद की बुनियाद बदल चुकी थी। ये कुरान सिर्फ इंसानों के लिए नहीं, जिन्नात के लिए भी उतारा था। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तिलावत मुकम्मल फरमाई तो जिन्नात एक दूसरे से कहने लगे, खामोश रहो, गौर से सुनो, ये वो कलाम है जो हमने कभी नहीं सुना था। आज सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तिलावत खत्म हो चुकी थी। जिन्नात आग के करीब आकर कहने लगे, ए मोहम्मद, हमने अजीब कुरान सुना है जो दिल में उतरता है, हम उस पर ईमान लाते हैं। हम गवाही देते हैं कि आप अल्लाह के सच्चे रसूल हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम अपनी कौम के पास वापस जाओ और उनको खबरदार करो, उन्हें दावत दो कि वो भी उसी अल्लाह पर ईमान लाए जो तुम्हारे और मेरे रब है। फिर वो जिन्नात वादी नखला से रुखसत हो गए और अपनी कौम में जाकर कुरान की दावत देने लगे। मोहतरम नाजरीन, आज दुनिया में जितने भी मुसलमान जिन्नात हैं वो इसी वाक़ये के बदौलत मुसलमान हुए। तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। मिलती है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।